इतने ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस पूरे इंडिया में होते हैं। RCC means Rape Crisis Cell. It was constituted by the Delhi Commission for Women along with the Delhi Police in 2005. We are working since 2005. We are assisting victims free of cost. How is this involved with the process of procedural aspect of the trial of sexual victims? We are starting from registering FIR to the final disposal of cases before the court. Do you think ये awareness level पे है अभी? नहीं. That's what I'm telling, right? नहीं. उस level पे awareness नहीं होती है. But for our viewers, if they want to know what exactly this is, they आया कैसे? तो can you explain that? मैं यमुना बाजार मैरिजेस, सारे मैरिजेस ऐसे नहीं है, कुछ तो उन्होंने जनरली करवाया भी होगा. Hello everyone, I'm Akansha Vajpayee. Welcome back to Legal 6 Law School. आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में। ऑब्वियसली बहुत सुना हुआ वर्ड है, बट स्टिल इतने ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस पूरे इंडिया में होते हैं दैट कभी कभी लगता है कि लीगल्स प्रोविजंस इसके लिए इनफ हैं। अगर मैं पास्ट इसी वीक की बात करूं तो देयर आर सो मेनी केसेस लाइक 2 ओडिशा कॉप्स अरेस्टेड फॉर रेपिंग माइनर्स, teen gang raped in Maharashtra, Thane, UP man rapes 18-year-old women and pretext of exorcism. Minor sisters die by suicide in Rajasthan, and the worst, father allegedly rapes her own daughter and impregnates her. So इसका मतलब ये है कि क्या हमारे पास इनफ लॉज नहीं है? निर्भया कांड जो ऑलमोस्ट 2012 में हुआ था, तो अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कुछ भी इसके प्रोटेक्शंस नहीं मिले। वेल, देयर इज अ कमिटी, इनफैक्ट आई वुड से देयर इज अ सेल कॉल्ड एज रेप क्राइसिस सेल, जो सेटअप करा गया था दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन में बैक इन 2005। सो लेट अस डिस्कस कि इनका रोल क्या है हमारी सेक्सुअल ऑफेंसेस को हटाने के लिए। सो टुडे वी हैव मिस मनी चौधरी विद अस। शी इज अ RCC counsel. Let us know what exactly is RCC from her only. Hello ma'am. Thanks Akansha for inviting me here. So actually RCC means Rape Crisis Cell. It was constituted by the Delhi Commission for Women along with the Delhi Police in 2005. We are working since 2005. We are assisting victims free of cost, specifically sexual assault victims, any domestic violence also. But we are providing advocates also for specifically sexual abuse cases, not in domestic violence, in sexual survivors. So RCC specifically deals with sexual offences, victims of sexual offences. Yes, exactly. Okay, So all the specifically sexual deals offences. all the sexual offences. Okay. In almost all the courts in Delhi. Okay. Yes. How is this involved with the process of procedural aspect of the trial of sexual victims? We are starting from registering FIR to the final disposal of cases before the court. Okay. Exactly. We are starting from the registration of FIR. So our counselor visits there. They help victims or survivors in registering their cases before the police stations. Then they accompanied victim to the medical examination also. Okay. Then they accompanied victim to the court also for recording of 164. So if let's say कि there is a sexual victim, so अगर वो पुलिस स्टेशन जाती है तो कैसे उसको काउंसलर मिलेगा? बिकॉज अभी तो उसको सिर्फ पुलिस पर्सन, वही पुलिस मैन ही मिल रहा है, इंस्पेक्टर ही मिल रहा है। सो हाउ द काउंसलर विल बी अवेलेबल टू हर यहाँ पे? मैं आपको बताऊँ आकांक्षा, एक्चुअली क्या है कि ऐसे ही हमने बहुत सारे सोशल अवेयरनेस भी रखा हुआ है बहुत जगह ही, कि आपको अगर जो वुमेन्स के अगेंस्ट केसेस है उस पर 1091 पे कॉल करना है, 185 पे कॉल करना है, 181 पे भी आपको कॉल करना है। तो अगर आपको नहीं पता है, आपने पुलिस में कॉल किया, आप पुलिस के पास गए, पुलिस आपको ले गई, तो पुलिस फिर कॉल करती है। ओके। हाँ बिल्कुल। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ पुलिस also, हाँ, to call immediately inform, and only the ladies police officers will attend the victims. Okay. Not the gents police officers. Okay. जितने भी sexual offenses हैं या उसके victims हैं, rape survivors हैं या किसी भी तरह के survivors हैं जो खासकर sexual assault वाले हैं, उनका specifically direction है laid by the Supreme Court कि only ladies police officers will be attend. Okay. इवन इन द नाइट। सो एक पुलिस ऑफिसर्स जो है जिसकी रैंकिंग एटलीस्ट हेड कांस्टेबल से नीचे नहीं होनी चाहिए, लेडीज पुलिस ऑफिसर्स वुड रिमेन प्रेजेंट बिफोर द पुलिस स्टेशन एंड ओनली शी कैन हैंडल हर। ओके। नाउ जैसे कि FIR लॉन्च करना है तो उस टाइम पे काउंसलर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि बिफोर द विक्टिम शुड बी काउंसल्ड देन ओनली द FIR शुड बी लॉन्च्ड।
राइट? हाँ, Right. counseling required. Counseling Counseling is required. Yeah, for making the complaints. Okay, so is it any time limit ki counselor should be provided to the victim, or what is it? No. She required to be present. So what police will do? See, immediately अगर आप कॉल करते हो पुलिस को, आप कॉल किया आपने या आप थाने चले गए मान लो, तो वहाँ पे पुलिस क्या करती है, वो सबसे पहला ये काम करेगी कि आपको बिठाएगी, वो आपको कॉल करेगी, जो लेडीज पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। मतलब ये नहीं कि कोई जेल पुलिस ऑफिसर आपको आ रहा है, आपसे कोई बातें कर रहा है, नहीं, वो आपको बस ठीक है आप पुलिस स्टेशन में आ गए या आपने कॉल कर लिया, पुलिस गए वहाँ पे, आपको लेके आ गए पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे इमीडिएटली वो कॉल करेंगे काउंसलर को। काउंसलर, ओके। बिल्कुल। और वो काउंसलर यही आरसीसी कमेटी के ही होते हैं? हाँ, वो बिल्कुल, वो एक्चुअली आरसीसी, दैट्स व्हाई ये जो है दिल्ली पुलिस के साथ मिलके काम करते हैं हम लोग। बिकॉज जो हमारे इमीडिएटली उस कॉल के बाद हमारे काउंसलर्स वहाँ जाएंगी, वो विक्टिम से मिलेंगी, वो बात करेंगी, उनके प्रेजेंस में स्टेटमेंट होते हैं उनको पूछा जाता है उनका क्या हुआ है, या वो कंप्लेंट्स लिख रही होती है, उसमें उनको हेल्प करवाते हैं। तो उसके बाद वो एफआईआर रजिस्टर करवाना, तो अब ये हो गया, अब आईओ के हाथ में केसेस चले गए हैं, वो अब रजिस्टर करेगी, कब करेगी, अब करेगी, थोड़ी देर के बाद करेगी, वो रजिस्टर करवाएगी। उसके बाद उस एफआईआर की कॉपी विक्टिम को दिलवाना काउंसलर का काम है। अच्छा। उसके बाद उसके साथ में मेडिकल जाना, डॉक्टर के पास जाना, उससे मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी पूरी काउंसलिंग करेंगे वो, सो दैट कि वो एकदम अपने आप को अकेला ना फील करे। आई थिंक ये मेडिकल एग्जामिनेशन और जो काउंसलिंग की जो रिपोर्ट होगी ये चार्जशीट के साथ जाती है? हाँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ चार्जशीट। यस, हाँ, जाती है बिल्कुल। वो एक रिपोर्ट तो चलो वो बाद में बनाएगी, उस वक्त इतना टाइम है नहीं, एक साथ में विक्टिम है, लेकिन वो उसका बैक वर्क है जो वो करके रखेगी, दैट विल बी इंक्लूडेड विद द पार्ट ऑफ चार्जशीट। बट कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो रिपोर्ट कब तक जानी है? नहीं, वो इमीडिएटली वो दे देगी विद इन 1 day और सेम डे। अच्छा, 1 day, मैक्सिमम 24 आवर्स? मैक्सिमम 24 आवर्स में वो दे देगी रिपोर्ट, देना ही देना है। मतलब वो रिपोर्ट दे देगी, बट वो रिपोर्ट किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, देयर इज अ थिंग ऑल्सो कि अगर आप उस चीज को, तो मान लो देयर इज अ केस ऑफ मेजर विक्टिम्स, सपोज इफ देयर आर माइनर विक्टिम्स, इवन दो शी कांट डिस्क्लोज दिस टू एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अच्छा। हाँ, देयर इज ए गाइडलाइन ऑल्सो कि आप ऐसा हुआ था, अगर आप देखोगे किसी ने 164 को लेकर आईओ ने 164 एक एक्यूज के काउंसिल को शेयर किया। अच्छा। हाँ, एंड शी कांट डू इट, एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑल्सो कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस चीज को अगर आप डिक्लेयर करते हो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप किसी विदाउट फाइलिंग चार्जशीट। सो अभी यहाँ पे काउंसलर का काम यहीं तक है। सो अब आरसीसी काउंसिल का रोल यहाँ पे कब आता है? हाँ, अब जैसे उसके जो काउंसलर्स हैं यहाँ तक 164 तक आ गए। 164 के बाद क्या होता है, वो रिपोर्ट ग्रुप में, रिपोर्ट नहीं, जो उनकी दूसरी रिपोर्ट है कि हाँ ये विक्टिम है, उसकी ये एज है, उसके ये ऑफेंस है, उसके साथ ये हादसा हुआ है। So this is charge sheet only then? No, this is not charge. This is details of the victims. Reporting of the cases. अच्छा. That's why we require reporting of the cases. Once case is lost, there is a report also. क्या ये केस लॉस, उसका एफआईआर नंबर ये है, ये सेक्शंस के साथ में ये ऑफेंस हुआ है, इस जुरिस्डिक्शन में, इस थाने में है, ये विक्टिम आ रही है 164 के लिए मैं आ रही हूँ, तो उसको ऑटोमेटिकली उनको हेल्प के लिए देते हैं एडवोकेट्स की, आपको जरूरत नहीं है उधर भागने की, हमारे पास लीगल असिस्टेंस भी हैं आपके लिए। अच्छा। तो उस वक्त वी एंटर्ड बिफोर द कोर्ट। उसके बाद नाउ इज आरसीसी काउंसिल, नाउ आरसीसी एंटर्स ओके फ्रॉम 164। फ्रॉम 164 उसके एग्जामिनेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, आप उससे मिले, आपने उससे बात किया, आपकी अपनी आप वो चीजें हैं कि आप हाउ यू आर काउंसलिंग हर, आपको लग रहा है क्या लग रहा है, काउंसलर ने अपना काम कर दिया। अब ना इट्स योर पार्ट, इट्स एडवोकेट्स पार्ट की। बट हाउ इज पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आरसीसी काउंसिल डिफरेंट? उनका रोल डिफरेंट कैसे है? क्योंकि वो भी विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपी भी कर रहा है। वो कब रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कब कर रहा है? आई थिंक बेल एंड उस टाइम पे आफ्टर 2 months or 3 months. अच्छा। Once charge sheet is filed. Okay. Or someone is coming, like accused is arrested and he is coming with the bails. Then PP represents. Okay, तो वो 3 महीने तक वो क्या करेगा विक्टिम? तो यहाँ पे असिस्टेंस है। और उसके मैं आपको एक बात बताऊँ आकांक्षा, कि वहाँ पे भी आप कोर्ट में जो पीपीज हैं, क्या पीपीज जस्ट उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपी डजंट नो एंड डजंट इवन थिंक अबाउट कि क्या विक्टिम के साथ अभी हो रहा है, 3 महीने से क्या सफर कर रही है, उसको वो कहीं उसके पास रहने की जगह है या नहीं है, या जो उसके साथ हुए हैं, जो ऑफेंसेस हैं, उसके कंकरेंस में हुआ क्या है घर पे, क्या घर वाले ने उसको छोड़ दिया, क्या उसके ऊपर कोई थ्रेटनिंग है नहीं है, वो कौन इनकलकेट करेगा?
आरसीसी काउंसिल वो आप पुलिस अपना काम कर रही है, आईओ अपना काम कर रही है, पीपीज अपना काम करते हैं। अगर इस बीच में उसके पास प्राइवेट काउंसिल के लिए अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, उसके पास उसको ये भी नहीं पता उसके राइट्स क्या क्या हैं, या उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ नहीं पता उसको कि मेडिकल नीड है या नहीं है उसको, सपोज देयर इज इंजरी and even if there is no injury, there is a mental trauma, there is a rehabilitation requirement of rehabilitation also. yes. अब एक बच्चे के साथ में, एक गर्ल्स के साथ मैं मानती हूँ किसी के साथ भी ऐसे हादसे होते हैं, उसके बाद उस ट्रॉमा से उसको बाहर निकलने में टेक्स टाइम। तो वो किसको बताएगी? ऑलरेडी आप समझ रहे हो एक एफआईआर रजिस्टर करवाना और वहां से घर तक आना, सबने अपनी यहाँ ड्यूटीज कर दी, लेकिन उसके साथ अभी भी उसके ऊपर बीत क्या रहा है? हाँ, बैक एंड पे उसको जो असिस्टेंस है, यहाँ पे आरसीसी काउंसिल का रोल। और इसीलिए दैट्स व्हाई एडवोकेट्स रिक्वायर्ड दिस स्टेज। ये क्रूशियल पीरियड है। यहाँ पे आप देखो, वो बच्चा, पुलिस ने अपना काम किया, एक पुलिस का रवैया आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, उनका बोलने का तरीका क्या है। एक विक्टिम्स, एक जो जा रही है, वो एक्चुअली वो जाने के बाद वहाँ डबल विक्टिम बन जाती हैं फिर वो। इनफैक्ट 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्होंने गाइडलाइंस दी थी, जिसमें उन्होंने यही मेंशन करा था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप विक्टिम के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, ये आप तो मेक श्योर दैट आप बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा सटल होके बात कर रहे हो, बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है विक्टिम। सो ये उन्होंने इसमें मेंशन करा था। ऐसे कई गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, आप इस तरीके से, दिस इज ऑल ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन when trial started, yani after in POCSO, like after 60 days, or in Major after 90 days investigation time period hai na. And what happens on behind that scene? You're right. Baby used to be in the court, not in the house, not during what she is going through. Who is threatening her? Okay. Who will like inculcate her? And she has not that much of financial leverage. Like what are the powers? What are there any powers with the RCC Council? है कोई powers? वो उसका apart from representing the victim, और क्या powers हैं? आप एक रेप सर्वाइवर को, विक्टिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनके बिहाफ पे जितने उनके लीगल राइट्स हैं, आप उनको बताते हो, और उनके बिहाफ पे नोट अदरवाइज उनके बिहाफ पे ही आप उन पे एप्लीकेशन मूव करते हो, आप उनको रिहैबिलिटेट करते हो, आप उनकी जो मॉनेटरी बेनिफिट है, कंपनसेशन, लीगल कंपनसेशन है, आप वो मूव करते हो। उस कंपनसेशन में भी आप उसको डिस्पर्स करवाते हो, आप उसको बताते हो, आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, और मान लो कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास, तो आप ये इन्फॉर्म करते हो, आप डालसा को, आप आईओज को इन्वॉल्व करवाते हो, आप कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाते हो। Who will do this? तो ये सारे जो वर्क, मान लो उसको ऑर्डर भी हो गया कंपनसेशन, बिकॉज़ आई थिंक ये सारा जो वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन, वो तो उनको बिल्कुल नहीं पता होगा विक्टिम्स को। एग्जैक्टली नहीं पता होता। ये फास्ट फॉरवर्ड काम हो जाता है, ये फास्ट फॉरवर्ड काम होता है। उनको बताना भी साथ में होता है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स हम ये लगा रहे हैं, ये इस काम के लिए लगा रहे हैं। और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आकांक्षा कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कॉम्पनसेशन, लेकिन कॉम्पनसेशन का ऑर्डर हो गया, लेकिन कॉम्पनसेशन 1 मंथ हो गया, उसको रिक्वायरमेंट है पैसे की, पर उसको नहीं, डीएलएस ने उसको पे नहीं किया अब तक। तो हु विल रिपोर्ट? यस, हु विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल? पीपी कांट, इन दिस स्टेज पीपी नेवर एंटर्स। हाँ, पीपी तो है ही नहीं अभी तक, है ही नहीं पिक्चर में। आईओ अपने काम में बिजी है। एक आईओ जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो इतने बिजी होते हैं कि वो शायद उसके 2-4 कॉल्स भी अटेंड कर ले, ये भी बहुत है, अदरवाइज वो नहीं अटेंड करते हैं। मोस्टली विक्टिम्स हैं, वो कोर्ट में आके रो रही होती हैं कि मैडम मैं हमको कॉल कर रही हूँ, ना मेरा एक्यूज अरेस्ट हुआ है, मैं कॉल कर रही हूँ, ना मेरा फोन उठाया जा रहा है। राइट। तो अपनी बातें तो उसको रखने का भी, और उसकी बातों में इतनी सेंसिटिविटी जो है, वो उसको वो हेल्प नहीं मिल रहा होता है। जो एक रेप सर्वाइवर्स को, जिसने ये देखा, इसके साथ ये हादसा हुआ है, तो उस एम्बिट में है, और आप उसको ऐसे बात करोगे तो कैसे वो? मैम, आप इन मैटर्स को एज अ आरसीसी काउंसिल बहुत ईयर्स से इनको देख रहे हो, इन मैटर्स को। कैन यू थ्रो सम लाइट्स ऑन दोज विक्टिम्स जिनके परपिटेटर्स उनके पेरेंट्स, मतलब फादर ही होते हैं? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि 17 अक्टूबर को एक फादर को कॉन्विक्ट करा गया बिकॉज उसने बेटी को ही प्रेग्नेंट कर दिया, और जब उसकी डॉटर वो एफआईआर लॉन्च करने आई तो वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। तो इस तरह के केस में कैसे, मतलब इज इट लाइक अ डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्मल केसेस जहाँ पे कोई स्ट्रेंजर उनके साथ एक्ट कर रहा है? यस आकांक्षा, ऐसे केसेस में तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग, बिल्कुल जिसको मैं कह सकती हूँ एक्सट्रीम लेवल ऑफ काउंसलिंग
समटाइम्स उसको ज़रूरत इतनी ज़्यादा है बिकॉज उसका परपिटेटर्स घर पे ही है, घर पे ही है, जो घर का मेंबर है, जिसके साथ वो बच्ची सो रही है, खा रही है, पी रही है, बचपन से जिसको देख रही है, और वो परपिटेटर्स के साथ अगर ऐसा कुछ वो कल्प्रिट है, वो कर रहा है जो ना तो वो बोल सकती है किसी को। अक्सर ऐसा होता है ऐसे केसेस में कि जो बच्चियां हैं वो नहीं बोल सकती, नहीं बोल पाती हैं। वो जैसे आपने बताया कि वो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं या डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर रिपोर्ट करता है इस केस को, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी गाइडलाइंस दे दी हैं कि अगर came to the knowledge of any neighbors, doctor, तो वो immediately mandatory to report the case. Right. तो वो आप इन्फॉर्म कर रही है, उसके बाद अब आप उस केसेस में क्या होता है कि वो फादर जेसी में है, what happens, only one earning member है घर में, कोई कमाने वाला नहीं है, तो फाइनेंशियल इशू भी आ गया, फाइनेंशियल इशू आ गया। फैमिली प्रेशर ये है कि मदर नहीं चाहेगी कि जिसका हस्बैंड जेल में है, और दूसरा इश्यूज ये आ जाता है, एक सोशल स्टिग्मा तो ही गया कि इसके साथ ऐसा हुआ है, या जो प्रेग्नेंट है आप जान रहे हो, फिर उसका एमटीपी करवाना कि किस लेवल तक का है, अभी प्रेगनेंसी है, क्या 4 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, इन वो सुप्रीम कोर्ट सेज इन दिस रिगार्ड। तो वो फिर आपको उस वक्त उसको और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसको डिलीवरी करवानी है या उसके बच्चे को, ये भी काउंसलिंग, हाँ, एवरीथिंग। अदरवाइज ये आप CWC में फिर पेश होना है उसको, तो आप अगर उसको उस वक्त उसकी आपके असिस्टेंस की जरूरत है उसको, आप समझ लो उस वक्त वो निकल रही है घर से, उसने पुलिस वाले को पता चल गया, उसके बयान हो रहे हैं हर जगह, पुलिस ने पूछा, मजिस्ट्रेट ने पूछा, काउंसलर ने पूछा, RCC काउंसिल भी पूछ रही है, CWC में पूछा जा रहा है, ऊपर से वो उसी घर में वापस लौट रही है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ह्यूज। तो इनको क्या अकोमोडेशन भी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। खासकर जैसे आपने बताया, जिसमें जो फादर हैं, इंसिस्ट केस जिसको कहते हैं, इंसिस्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली पहले अगर देखते हैं कि नहीं घर पे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर हमें लगा, इसलिए हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, या हमारे काउंसलर्स भी बताते हैं कि अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो भी इमीडिएटली उसको शिफ्ट करते हैं। जी, हमारे बहुत सारे संस्कार आश्रम से। अच्छा, इज इट लाइक इजियर कि फॉर RCC काउंसलर्स लाइक to get the legal compensation, to get them a legal compensation, is it like easier, या फिर यहाँ पे भी थोड़ी डिफिकल्टी फेस करती है RCC काउंसिल? क्योंकि जनरली अगर हम केसेस में देखें तो लीगल एड प्रोवाइड करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। हाँ, लीगल एड। What about legal compensation? Are you asking about the legal compensation or legal aid? Compensation, if we say, अगर victim को जो भी compensation या aid दोनों ही देना हो, दोनों ही, I'm talking about both. तो is it difficult यहाँ पे भी? नहीं, ये easy तब से हुआ है जब से victim compensation scheme 2018 का आ गया, वो थोड़ा सा amount उसका enhance हो गया। But easy है पिलवाना? इतना easy आपको नहीं है, आपको वहाँ भी उसके trauma हुई से, अभी मैंने आपको बोला कि जो report हम जैसे application put up करते हैं, लगा दिया आपने, कोर्ट में फाइल किया, सो दैट मच इजी। आईओ से जो है वहां पे रिपोर्ट मंगाई जाती है कि आप विक्टिम का इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लेकर आओ, इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट। नाउ व्हाट आईओ विल डू, उसने बच्चा पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स से बात करी, उसकी मंथली इनकम ये है, ये बनाकर दे देती है। और मंथली इनकम अगर सही है तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट। आप एक बात बताइए, आप एक बच्ची ने जिसका 3 महीने से या 6 महीने से वो भाग रही थी, उसके बाद उसका मेंटल जो ट्रॉमा हुआ है उससे, जिसको हमने बाहर निकाला है, उसको कौन, who will quantify this? Actually, आप उस मेंटल ट्रॉमा को कैन यू क्वांटिफाई दैट मेंटल ट्रॉमा? अब ब्रूसेस हैं, चोट लग गई, इंजरीज है, लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट हैपेंस इन मॉनेटरी बेनिफिट, थोड़ा सा एटलीस्ट वो इनहांस हो गया 18 के बाद से, जो 18 के बाद गाइडलाइंस उस हिसाब से उसमें उन्होंने क्वांटिफाई कर दिया है कि ये अमाउंट आपको देना है। सपोज देयर इज ए पैरामीटर्स कि ये केसेस हैं, रेप केसेस हैं, रेप में इंजरीज कितनी तो है, इतना मिनिमम तो जाएगा। हाँ, तो देयर इज ए गाइडलाइंस। Then we started like executing all these things. नहीं तो it's not so easy. It's not easy. It's not so easy. It's not so easy. But I think still it is not that easy even after the Victim Compensation Act. Like I don't know if you can only better tell. No, we are doing it. It is? हाँ. Okay. Everyone is like, every RCC lawyers are doing this. Can you tell me, like after the incorporation of RCC, क्या major change आया है? Because every time, मतलब I don't know कि because you are working there, so कुछ major change आया in the
इन टर्म्स ऑफ कि हाँ विक्टिम्स को एक्चुअली असिस्टेंट करेक्ट लेवल ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करा जा रहा है, या इट हैज इट बीन लाइक आपने बोला कि अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा कि आप जैसे पुलिस स्टेशन जा रहे हो तो इट इज़ योर ड्यूटी दैट आप खुद बोलो कि लिसन इट इज़ अ राइट कि मुझे एक काउंसिल प्रोवाइड करो. सो डू यू थिंक ये अवेयरनेस लेवल पे है अभी? नहीं 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 नहीं, That's what I'm telling, right? नहीं नहीं नहीं, उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं होती है. इवन क्या करते हैं हम लोग कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, DCW दिल्ली पुलिस क्या करती है मिलके अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो पुलिस ऑफिसर्स इस तरह के केसेस जो IOs हैं, जो SI रैंक के हैं ऑफिसर्स, जो इस तरह के केसेस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, और जो RCC काउंसिल्स हैं, उनको वो हर एक मंथ पे कुछ मंथ के इंटरवल्स पे एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है. सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एग्जैक्टली टू सेंसिटाइज about the gender, about the discrimination, okay, about like reformation of police department. Okay, in fact reformation of police department is हाँ okay, reformation required in some. और किस लेवल का रिफॉर्मेशन है यहाँ पे, जिस पे यहाँ पे आपको मैं बताऊँ बहुत सारे लेवल्स के हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर आप देखोगे 2012 से पहले के केसेस आप देखोगे, आप टच करोगे या आप ऑफिसर्स को देखते हो, द वे दे वर हैंडलिंग द केसेस. Suppose one of the rape victims enters before the police stations. आज हुआ है घटना, किसी से पूछ पाछ के वो somehow अगर पुलिस स्टेशन पहुंच गई, आज की डेट पे मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा कम होगा, बट आज भी है. उससे पूछा जाएगा अच्छा आज रेप हुआ तुम आज आ गई क्या, बहुत तेज लगती है. बैठो. अगर वो 2-4 दिन के बाद पहुंची है, उसने बोला मेरे साथ गलत काम हुआ है, मैं ट्रॉमा में थी और मुझे किसी ने गाइड किया है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाओ, इमीडिएटली जाकर रिपोर्ट करो, तो उसको बोलेंगे अच्छा 4 दिन से सो रही थी क्या, पक्का सेटलिंग कर रही होगी. तो उसने माना नहीं तो यहाँ आ गई उठ के. राइट. तो दोनों तरीके से विक्टिम ही परेशान हो रहा है. विक्टिम परेशान होगा. अच्छा विक्टिम को ये नहीं पता कि क्या RCC उसको हेल्प कर रही है, कि क्या उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं. वो तो उस वक्त तो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में है, गिरी पटकी वो किसी तरह से पहुंच रही है. वहां पे ये पुलिस की ड्यूटी है. इसीलिए कि अगर उसने एक सेक्शन और भी ऐड कर दिया पुलिस के लिए, अगर आप देखोगे वर्मा कमेटी गाइडलाइंस में, कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने डिप्टी को डिसओबे नहीं कर सकती, वो इमीडिएटली RCC को इन्फॉर्म करेगी. अच्छा, डायरेक्टली वो काउंसलर को बुलाएगी. तो काउंसलर फिर वो जैसे ही वो केस अटेंड करेगी, काउंसलर हम लोग को एक ग्रुप में डालती है, इन्फॉर्मेशन डालती है. अच्छा. एंड दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, वी कांट डिस्क्लोज इट टू एनीवन. दिस इज अ ग्रुप. Okay. RCC headed by the senior officers. Okay. हाँ, senior judicial officers. Okay. हाँ, they are the retired officers. वो उसको हेड कर रही होती है. तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग उस इन्फॉर्मेशन के तहत उसको इमीडिएटली कॉल करते हैं, या अगर वो फोन नहीं उठा रही है तो काउंसलर से पता करते हैं कि कहाँ है, क्या स्टेज है, क्या वो वहाँ पे है, केस दर्ज हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. इफ रिक्वायर्ड आवर असिस्टेंस के मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, मैं बात करूँ IO से, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो, तो अगर वो हमें बताती है कि नहीं सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है या अभी ये रीजन है, तो देन हम क्या करते हैं, ठीक है फाइन, अब उसको कोर्ट ले आओ, गवाही कल होनी है परसों, फिर हम वहाँ उसको अटेंड करते हैं. बट उसकी बिल्कुल हर चीज स्मूथली हो जाए, स्मूथ उसका काम हो, उसके राइट्स जो है वो उसके स्मूथली मिल जाए. आपने मुझे क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या रोल होता है RCC काउंसिल. ट्रायल का जो फेज है उसमें इनका क्या? हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि ट्रायल फेज में क्या, ट्रायल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में थ्रू IO ही उसका केस अटेंड करते हैं. अच्छा. वो डायरेक्टली विक्टिम से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही बात करते हैं डायरेक्टली. पीपी. ओके. अब आकांक्षा मैं आपको बताऊं, आपको एक पेपर बनाकर दे दिया गया और आप उस पेपर को पढ़ रहे हो, आपने उससे तो बात नहीं करी है. ये ऐसा भी तो है जो पेपर में लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें चेंज है. राइट. बहुत सारी चेंज है, क्योंकि जहाँ पे कई तरह के केसेस हैं आप बता रहे हो, जैसे जहाँ पे परपेट्रेटर उसका फादर है, कल्प्रिट उसका फादर है. आप बताइए वो जो प्रेशर वो सफर कर रही है घर पे, रोज उसकी मदर कहती है तेरी वजह से पूरा फैमिली खराब हो गया है, लोग हमें बोल रहे हैं ये, वो हर दिन वो सह रही है ना. ये and also she cannot go to school or college because सब छूट गया. बिल्कुल, ये चीजें तो एडिशनल है, एक के साथ में एक फ्री है, उसके साथ परेशानियां. मतलब उसको फील करवा रहे कि तुम्हारी मिस्टेक है, कॉलेज भी अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ है. Yes. अच्छा जो उसके नेबर्स हैं आप देखोगे कि वो भी अच्छा इसके साथ, अच्छा इसके फादर नहीं किया है, अच्छा नहीं फादर उसके फ्रेंड नहीं किया, अच्छा ये कैरेक्टरलेस हो गई.
और अगर वो पढ़ी लिखी है तो फिर तो पक्का वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती थी ना होगी कि उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए and बस then वो she- yes. जब रात को घूमती थी Right. उसको इमिडिएटली उसको ये मिलना है, उसको सपोर्ट नहीं मिलना है कि नहीं वो कैरेक्टरिस्ट नहीं थी, या अगर उसका वो फ्रेंड हुआ, वो जो परपिटेटर है अगर वो फ्रेंड है फिर तो उसकी जिंदगी खराब है। I think that was a case in this निर्भया केस also. हाँ, जो साथ में फिजियोथेरेपिस्ट थी था। तो वो उसका फ्रेंड ही था। उसका friend ही था। काफी सारे उस टाइम पे बातें चल रही थी कि अच्छा देखो इतनी रात में she was roaming with. हाँ Yes. with him, और वो देखो बॉयफ्रेंड के साथ ही मूवी देख के आ रही थी। Right. आप एक मिनी स्कर्ट नहीं पहन सकते हो, आप कैसे ऐसे ऐसे कपड़े पहन सकते हो, आप रात को नहीं घूम सकते। मतलब एक लड़की के लिए ही ये सब चीजें क्यों होता है? तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, Yes. इस तरह की चीजें कि आप एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए आपने सब कुछ उसके ऊपर दे दिया, मतलब रिस्पेक्ट भी, इज्जत भी तुम संभालो, तुम्हारे साथ गलत ना हो, पढ़ाई में भी तुम बिल्कुल अव्वल रहो, हाँ. लेकिन तुम कपड़े वैसे मत पहनना। कॉन्वेंट में पढ़ के आओ लेकिन कपड़े अपने पसंद के मत पहनना, Yeah. कपड़े तुम हमारे हिसाब से पहनना। Yes. नहीं तो तुम्हारे There was even a politician who was saying this हाँ about the clothing कि हाँ. ऐसे कपड़े पहनोगे तो ये होगा ही. हाँ. So at the administrative level they are saying such kind of a comment. How can that Exactly. is also, and जो आप बता रहे हो ये पुलिस डिपार्टमेंट जो मैं देख रही थी 2012 से पहले कि आप पुलिस ऑफिसर्स को देखना, जो लेडीज पुलिस ऑफिसर्स होती थी हाँ. स्पेशली, आप देखोगे द वे शी स्पीक्स, किसी ने केस रजिस्टर करवाने आ गए तो उसके लिए ये इजीएस्ट वे है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो उसको थप्पड़ भी मारती थी। अच्छा. हाँ, उसको थप्पड़ भी मार सकती थी वो, और अगर एक भी प्रूफ निकल गया, मान लो कि ये दोनों में फ्रेंडशिप थी, फिर तो पक्की बात है तेरी मर्जी से रिलेशन बने। राइट. अब तो वो कुछ उसके पास चाहे वो लाख बोले कोई सुनवाई नहीं है, उसको सुनना है, उसको वहां पे बुरी हालत होनी है। और उस वक्त उसको ये भी नहीं पता कि उसकी एक आरसीसी जैसी कोई चीज है या नहीं है। काउंसलर बुले बैठ के कोई काउंसलर आ भी रहे, ये केस अटेंड कर लिया, उसको तो तो समटाइम्स शी इज नॉट अवेयर, मतलब पुलिस स्टेशन पर उस चीज के बारे में बताया नहीं जा रहा कि आरसीसी एक चीज है। वो सीधा उसकी नहीं, उसको नहीं बताया जाता है, उसको सीधा ये बोल देते हैं, इमिडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं। काउंसलर आके उसको बताती है कि भाई मैं काउंसलर हूँ, मैं आपके लिए आई हूँ, ये आपका केस है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले, एंड आई डोंट थिंक सो कि सारे मैटर्स में ही पुलिस स्टेशन काउंसलर को बुला रही है। आई डोंट थिंक सो। इज इट? It is mandatory. That's why I told you there is a section also. अच्छा. आकांक्षा, it's mandatory. अगर वो डिसओबे करती है, हाँ. वर्मा कमेटी के गाइडलाइंस के बाद उन्होंने उस पे तो पूरी वो डाल दी कि अगर आपने उस डिसओबे किया गाइडलाइंस को, अच्छा, तो फिर आपके डिसओबे में there is a punishment. पनिशमेंट अंडर 166A 166 IPC का। हाँ हाँ एग्जैक्टली। वो उसने उस पे वो सेक्शन भी डाल दिए हैं कि आप नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करती है जल्दी में, वो इमिडिएटली इन्फॉर्म कर देती है, भाई अब तुम समझो। वो काउंसलर फिर उसको समझाती है कि भाई मैं आपके लिए आई हूँ, या आपके पास आरसीसी, फिर आरसीसी भी कहती है, आरसीसी में जो हेड है उनका भी कहना है कि विक्टिम्स को बिल्कुल यहाँ भी होना चाहिए कि ये उसकी लॉयर है, वकील का नाम ये है, उसके पास पर्चियां भी, सो दैट उसको याद हो, क्योंकि उस वक्त तो वो ट्रॉमा में है, उसको नहीं पता कि ये उसके जो मिल रहे हैं, जो एडवोकेट्स हैं या उसके काउंसलर है, वो हर वक्त के लिए है। We are every time we are तो on the लाइक calls. वी डिस्कस अबाउट ट्रायल, तो ट्रायल मतलब केस फाइनलिटी तक आरसीसी हाँ, फाइनलिटी तक बिल्कुल, till the disposal of the cases we are there. ओके. हाँ, till the final disposal of the cases. Suppose फाइनल डिस्पोजल हुआ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है। ओके. आप अगर आपको पता है उस बच्चे को हमने कहाँ रखवाया है, अब बच्चा 18 का हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे ने पढ़ाई में अच्छी कर रही है, बच्चा स्पोर्ट में अच्छी कर रही है, अब उसको क्या जरूरत है कि उसकी अच्छी जॉब लग रही है, हमारे पास, हम उसकी हेल्प करवाते हैं। बिल्कुल, टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केसेस RC remains present. Okay. Can you tell me Yamuna Bazaar marriage? What is this exactly? What exactly is this? Yamuna Bazaar marriage. Yes. And what is the status of this now? There is no legal sanctity, Akanksha. There is no legal sanctity of these But kind for of. our viewers, if they want to know what exactly this is, they आया कैसे, तो can you explain that? मैं यमुना बाजार मैरिज, सारे मैरिज ऐसे नहीं है, कुछ तो उन्होंने जनरली करवाया भी होगा, पर खासकर जो इस तरह के केसेस से जहाँ पे मैंने देखा था, मैं आपको फैक्ट बताऊँ, किसी केस में ऐसा देखा था कि अगर वो विक्टिम्स को किडनैप किया गया, पहले तो किडनैप करते हैं, उसके बाद उसको लेके ज़बरदस्ती कि आप मुझे तुमसे शादी कर लूँ, ताकि उसको ये फील भी दिलवाया जाए कि मैं तुम्हारा पति हूँ, उसको ये फील दिलवाना है। स्ट्रेंजर्स हैं जो किडनैप कर रहे हैं। जो कि स्ट्रेंजर्स हैं जो स्टॉक कर रहे हैं उसको। अदरवाइज अगर उसके आप थिंक करो, जो फ्रेंड है क्या वो उसको किडनैप करेगा?
फ्रेंड तो हो ही नहीं सकते। जो आपको फोर्सफुली किडनैप करके लेके जा रहा है, जो आपको कह रहा है मैं छुप के शादी करना है मुझे, वो कभी, मैं तो मेरे नॉलेज में तो फ्रेंड हो ही नहीं सकते। फ्रेंड कभी ऐसा काम नहीं करते। एक अच्छा फ्रेंड आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा सोसाइटी में, ना कि चुपके से शादी करने के लिए। एंड देन उसके बाद वो जो शादी, जो यमुना बाजार वाला शादी है, फिर उसके बाद उसमें साइन हो जाता है, शादी भी हो तो गई। वहाँ पे वो कोई एडवोकेट्स होते हैं जो ये सारा वहाँ काम पे एडवोकेट्स होते हैं आकांक्षा। एडवोकेट्स होते हैं। और मैंने तो सुना है कि वो एक क्या उसको कहते हैं, लिविंग भी चल रही है, लिविंग में वो भी चल रहा है कि उस पे एप्लीकेशन भी साइन हो जाते हैं कि हाँ दे आर लिविंग पार्टनर्स एंड लाइक ही वाज आल्सो मैरिड एंड शी इज आल्सो मैरिड। अच्छा, ओके। तो इस तरह के नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स में, अच्छा, आई थिंक जैसे ये जो मैटर्स है सेक्सुअल ऑफेंसेस के, जब कोर्ट में जाते हैं, अगर इस सेटलमेंट हो जाती है इसमें, तो एक्यूज अपने आप एक्विटल हो जाता है उसका, राइट? तो कहीं ना कहीं यमुना बाजार मैरिज इसी चीज पे यूज होती है। जैसे खासकर सेटलमेंट नहीं होता, सेटलमेंट नहीं, वो जो मैरिज, जिसको आप मैरिज कह रहे हो ना, अगर कई बार मैंने देखा है, अगर वैलिड मैरिज है, वैलिड मैरिज, लाइक दे वर नॉट मैरिड, ठीक है, उसने मैरिज किया, वाकई उस लड़के ने, चाहे उसने जानबूझ के किया या इसको जानबूझ के पागल बनाया, उसने शादी करी है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वो जल्दबाजी में शादी को रजिस्टर्ड भी करवाते हैं। अच्छा, हाँ, अब वंस इट इज रजिस्टर्ड, आप अलग रहो, आप अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हो, आपको ये भी नहीं पता मेरी शादी हो चुकी है। अब बस इतना, तो यार जबरदस्ती उसने मेरे साथ मांग में सिंदूर डाल दिया था और एडवोकेट्स के सामने उसने साइन करवाए थे। बट ये जो पर्पस है, आप बता रहे हो, व्हाट द पर्पस बिहाइंड इट वाज टू हैव सम सेक्सुअल रिलेशन विद द विक्टिम, जस्ट टू हैव सम सेक्सुअल एडवांटेजेस, एंड कहीं फंस ना जाए तो उसे शादी कर लेते हैं वो गलत डॉक्यूमेंट के साथ, जिससे हम कोर्ट्स में बच पाए, कोर्ट में बच पाए। कि आप देख लो 376 में अमेंडमेंट है कि ओनली मैन रिक्वायर्ड टू रेप अ विक्टिम, नॉट योर हस्बैंड, देयर इज नो मैरिटल रेप, जस्ट टू सेव देमसेल्फ, जस्ट टू सेव देमसेल्फ। एंड यहाँ पे यमुना बाजार मैरिज, देखिए, हाँ एग्जैक्टली, ऐसे मैं आपको केसेस बताऊं जो मैंने, अभी भी वो अंडर ट्रायल है, कई केसेस मैंने देखे जिसमें कल्प्रिट ने शादी कर ली है, एंड शादी करने के बाद उसके साथ तो वही रेप कर रहा है, तो वो मानोगे क्या शादी? तो उसे हमें ये भी उसको समझाना पड़ता है कि इमीडिएटली अगर रजिस्टर्ड मैरिज है, जाओ जाके डिवोर्स फाइल करो, जाके कोर्ट में आप डिसर्शन फाइल करो, या तो एप्लीकेशन से स्पेसिफिक नल एंड वॉइड का एप्लीकेशन फाइल करो कि ये ऐसी मैरिज तो है नहीं, इस मैरिज को नल एंड वॉइड करो, क्योंकि हाँ ग्राउंड्स उसके सारे गलत ही है इसके, राइट? आप रेप केसेस डले हुए हैं आपके, या फिर आपको पता है आपके साथ हो क्या रहा है, जबरदस्ती शादी बीइंग ट्रीटेड, एंड शादी किस ग्राउंड पे हुई, किस ग्राउंड पे? ये ऐसी शादी को शादी मानते हैं क्या? है ही नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी शादी तो है ही नहीं। शादी, तो कोर्ट इसमें किस तरह से इन शादियों को देखती है? कोर्ट ने तो बिल्कुल इसको बिल्कुल भी नल एंड वॉइड करती, बिल्कुल भी नहीं लेती, मतलब। हाँ, लेकिन जहाँ पे आप मान लो वो विक्टिम ही एडमिट करती है, एक्चुअली दिक्कत कहाँ होती है, विक्टिम्स जिस स्टेटस से होके आ रहे हैं, या उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई है, या फैमिली प्रेशर, एग्जैक्टली फैमिली प्रेशर है, या उसको यही नहीं पता कि इस मतलब ये मैरिज था, बस उसको पूछते हैं कि मान लो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, उसको पूछते हैं ये मैरिज आपकी हुई थी, उसने गलती से बोल दिया कि हाँ मैरिज तो हुआ था ना, बट उसने पूरी सेंटेंस नहीं बोली कि ये मैरिज हुआ, बट इट वाज फोर्सफुली, आई वाज नॉट इन सेंसेस, आई वाज बीइंग किडनैप्ड, then this marriage happens. But by statement के basis पे होगा, बट इट अफेक्ट्स योर ओन मैटर्स ना, कंप्लीटली होल मैटर्स को। तो इसीलिए मैंने बोला कि पीपीज वहाँ, हाँ, तो यहाँ पे आई थिंक आरसीसी काउंसिल का उसको काउंसिल करना, असिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग। उसके पास चार्जशीट की कॉपी भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता चार्जशीट कहते हैं किसको, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस आकांक्षा, पोक्सो में तो देखिए प्रोविजन की चार्जशीट मिलना है, विक्टिम को मिलेगा, मान लो उन्होंने उसको बोल दिया कि मिलना है, उसको दिलवा भी दिया, लेकिन एफटीसी में आप क्या करोगे, वहां तो चार्जशीट की प्रोविजन नहीं है उसको, और चार्जशीट मिला भी नहीं है, तो आपको उसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट? हाउ विल यू प्रिपेयर? जितने आपको प्रोविजंस पोक्सो में मिल रहे हैं, उसको सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन भी है, वहां पे बिल्कुल उल्टा होने वाला है, राइट? एफटीसी में आप विक्टिम को गाइड भी करना है कि आपको सोच समझ कर बोलना है, या क्या एक्चुअल हुआ क्या था। और इसने जो मैरिज वाली बात है वो पुलिस ने भी उसकी चार्जशीट में डाल दी होगी, तो उसका केस वीक हो जाता है अपने आप ही। आप समझ सकते हो कि अगर पुलिस ने वो मैरिज वाला वो डालेंगे कि उस लेके आएंगे प्रूफ कि भाई उसकी शादी हो रखी है, या शादी हो रखी है बट
मतलब वो घर में आज पिछले 15 साल से सफर कर रही है। कैसे शादी थी भैया? तो इट्स ओनली इन द नेम, यू नो, बिहाइंड द कर्टेन्स वो सब कुछ कर रहे होते हैं, बस एक शादी का स्टिग्मा डाल दिया, लीगल इम्प्लीकेशन से बचा रहे हैं। हाँ, जस्ट लीगल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए। कैन यू टेल मी सम वेरी इंटरेस्टिंग केस जो आपको इतने सालों में आप ये मैटर्स देख रहे हो, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैटर आया आपके सामने, सम डिफिकल्ट और समथिंग जिसमें आप भी बहुत सरप्राइज हो गए? बहुत सारे आए, बहुत सारे आए। अगर मैंने पोक्सो की एक मैटर था 30,000 कोर्ट में, अभी भी ऑल्सो अंडर ट्रायल है। मैंने उस केस में देखा देयर वाज ए गर्ल ऑफ एज 15 ईयर्स, और जो एक एक्यूज होता है जो उसके आसपास ही घर के आसपास रहता है, ठीक है, वो उसको स्टॉक करता है, इनिशियली स्टॉक करता है, उसके इस पे कभी हाथ पकड़ ले, ट्यूशन जाता है उसको भी हाथ पकड़ लेता है, कभी उसको प्रपोज करता है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आकांक्षा कि वो जब नहीं मानती है तो उसको उसने बहला कर फुसला कर, उसको नहीं, पहले उसका नंबर लेता है, उससे बात भी करता है, सो दैट उसके फोन पे कॉल्स आ जाएं। She is also involved. हाँ, कि वो सी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अब वो 15 साल की बच्ची है, आप देखो, उसको बात करता है, वो जबरदस्त को कॉल भी करता है। उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो उसको किडनैप करके लेके जाता है पार्क में, उससे फिजिकली रिलेशन बनाता है फोर्सफुली। उसके बाद जब घर वाले ढूंढते हैं, समाव वो लड़की रिकवर होती है, वो घर वाले को तो पता चलता नहीं इसका हादसा क्या हुआ, वो लड़की ने तो बताया नहीं कि उसके साथ आज पार्क में ये हुआ है। जब वो मिलती है वो चुप रहती है। घर वाले ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, उसको थाने में लेके गए, थाने वाले ने उससे पूछा, उसने तब भी कुछ नहीं बोला। उसने 376 और पोक्सो लगाई नहीं, इट वाज जस्ट मिसिंग एंड रिकवरी, देयर इज नो सेक्सुअल असॉल्ट। The main thing is now what happens आफ्टर 7 days, यानी कि वो लड़की के मेडिकल एविडेंसेस सारे खत्म हो गए। आफ्टर 7 days जब वो लड़की बेड से उठ नहीं पा रही है, तब दूसरे दिन उसे माँ को उसने बताया कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ ये चीजें हुई है। तो तब वो पुलिस स्टेशन जाती है, उसने बोलती है कि मेरी लड़की ने ये बताया है। तो पुलिस वाले उसको वापस करते हैं कि आप जाओ, आज नहीं कल आना, तुम्हारी आयु कोई नहीं है, आयु अभी छुट्टी पे है। और इस तरह से वो केस 7 days डिलेड आता है, आयु को दिया जाता है। मेडिकल एविडेंसेस तो उसके खराब हो चुके हैं। अब क्या बच रहा था, दोबारा से एक कंप्लेंट डालती है वो, जो उसका एफआईआर मिसिंग रिकवरी की थी उसी में उसने लगाया, दूसरी उसमें वो ऐड किया कि ये चार्जेस हैं। और अब आफ्टर 7 days फिर उसने उसका 164 करवा दिया, यानी 164 तब भी नहीं हुआ, 164 तो डिलीट रहा, वो भी डिलीट हो गया। अब वो अब करवा रही है। अब उसने विक्टिम ने उस पर पूरी बात बोलती है कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उस केस में मैंने देखा वो लड़की को बहुत कंपनसेशन अमाउंट भी बहुत कम मिला। मैंने लगाया एप्लीकेशन, बहुत कम, माइनर, बहुत ही लेस। What were the reasons जो उसको कम मिला? हाँ, reasons was they were taken, grounds were not mentioned कि ये कि हाँ उससे talking terms थे, it reveals from the report of the IO there is talking terms. And why the case was delayed for 7 days? That was because the victim was not that confident और इतना गुस्से में नहीं था कि वो Then I asked her कि what happened on that those 7 days? क्या हुआ था उसके साथ? तुमने 7 दिन क्या तुम सो रही थी घर पे? Then she said कि हाँ मैडम जो है मैंने 7 दिन नहीं, मैंने दूसरे दिन बताया था मदर को, लेकिन 7 दिन से उसको कोई पुलिस ऑफिसर नहीं मिला। तो 164 डिलेड हुआ है। और ये जो इम्प्रूवमेंट है वो किसी के सिखाने पे नहीं, एक्चुअली पुलिस वाले ने उसको 7 days तक उसको रोज भगाते रहे, रोज भगा रहे थे, वो थक गए थे कि हम जाए कहाँ। एंड रिजल्टेंटली व्हाट हैपेंस, उसको बेनिफिट्स नहीं मिला पूरा। उसके बाद में उसकी इन्हांसमेंट एप्लीकेशन लगाई हम लोगों ने कि इसको मिलना चाहिए, एंड शी वाज वेरी गुड इन एजुकेशन। अच्छा, उसकी काउंसलिंग अच्छी करवाई, उसने स्पोर्ट्स में भी अच्छा किया। अब तो नाउ सी इज स्टडीइंग इन कॉलेज में। हाँ, अभी ये मैटर चल रहा है, अभी ये मैटर अंडर ट्रायल है। उसने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है, वो फिजिकली बहुत। तो ये मेंटल ट्रॉमा उसके बिहेवियर में वो चेंज हो गया, सब इतना चेंज, बहुत चेंजेस मैंने देखा। 20 का, not very good. But it's good that she's improving, she's doing good in her academics and stuff. और लेकिन स्कूल में what happens कि स्कूल में जिस स्कूल में वो थी उस स्कूल में भी वो कुछ तो पूरा 8-9 महीने वो स्कूल नहीं गई। हाँ, obviously वो 8-9 महीने नहीं गई वो स्कूल, क्योंकि वो जो ट्रॉमा उसके साथ था कि लोग बोल रहे थे अच्छा, और सेम कम्युनिटी, बहुत ही प्रोमिनेंट जाट कम्युनिटी से they were belonging, इस वजह से पूरा वो था कि अरे देखना इसने छोरी ने तो मेरे को उसको फंसा दिया। उसकी दादी आती थी इसके घर पे। अच्छा, लड़के की दादी कि इसने तो फंसा दिया मेरी लड़की को, इसने फंसा दिया मेरी लड़की को। एंड
इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में बहुत लैक्यूनास रहते हैं, तो बहुत अभी सारे इतना डिले क्यों चल रहा है ट्रायल? हाँ, अब ये डिलेड व्हाट इज लेफ्ट इन लाइक व्हाट इज व्हाट गोइंग? हैपेंस लाइक एविडेंसेस में, फिर उसके बाद लॉकडाउन में एविडेंसेस नहीं Yes. हो रहे थे, तो इट वाज ऑल डिलेड डिलेड, ओके, ड्यू लॉकडाउन ओनली. Okay. Otherwise it could have been sorted out. या, But she improved a lot. हाँ, is- she is doing pretty good. स्कूल चेंज करवा दिया उसका हम लोगों ने, फिर से उसने 11th-12th परसू करके, अच्छा। हाँ, पूरा स्कूल उसका चेंज करवाया. फिर उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि जब वो उसको बेल नहीं मिल रही है या उससे पूछा गया कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, तो ये अच्छा. दूसरा आपने बोला एक और इंटरेस्टिंग केस था मेरे पास जिसमें एक लड़की के साथ घटना घटता है, लड़की का किडनैप होता है, उसके साथ रेप होता है. उसके घर वाले समहाउ जाते हैं पुलिस स्टेशन. तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ये कहते हैं विदाउट टेकिंग हर कंप्लेंट्स, आप जुरिसडिक्शन है इस कोर्ट थाने का नहीं, आप दूसरे थाने में जाइए. व्हिच यू कांट डू हाँ, anymore. which they can't do. बाय ना लैक ऑफ अवेयरनेस. आप इसको लैक ऑफ अवेयरनेस, आप वो इतने परेशान होते हैं, वो फिर उस थाने जाते हैं, उस थाने में भी उसकी रजिस्टर नहीं करते हैं, वो बोलते हैं उस थाने में आप जाओ, आप जाकर 0 FIR लेके आओ. अब उसको इस बीच में उस थाने से उस थाने में भागना, उस लड़की की ये हालत थी. आप देखिए उसकी मेडिकल एविडेंस, हाँ, तब तक तो सब कुछ सब जा रहे हैं. आप ये भी नहीं पता, तो ऐसी सिचुएशंस थी. राइट. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स. Right. आपको लैक्यूना इन्वेस्टिगेशन में रहती है. बट नाउ इट्स लाइक आई कैन से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क. अवेयरनेस से कोर्ट में भी, अवेयरनेस से एडवोकेट्स इतने अवेयर हैं, या विक्टिम्स भी इतनी अवेयर हो रही हैं, स्पेशली दिल्ली में तो रिपोर्ट्स होते हैं. दिल्ली में, बिकॉज आई थिंक आफ्टर निर्भया कांड दिल्ली में ही आरसीसी हाँ. बना है और अभी कहीं अदर नहीं है. स्टेट्स में नहीं है. अदर स्टेट्स में नहीं है अभी तक. एंड अभी तो हम हर पैन इंडिया, जैसे मैंने आपको केसेस बताए हैं, वो पैन इंडिया केसेस है. कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है, कहीं और हो रहा है. तो यस, अगर दिल्ली में आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी, हर बाकी स्टेट्स में भी होना चाहिए आरसीसी रेप क्राइसिस सेल, राइट? हाँ, बिल्कुल होना Why चाहिए. only in Delhi? क्योंकि रेप जैसा क्राइम हर जगह हो रहा है. There's a women commission in other states also. Yes. They are also working. अच्छा दिया. Like Delhi Commission for Women. हाँ. I can say. हाँ. हाँ. जितना ये काम कर रहे हैं, जितना उतना मेरे ख्याल में इतना सफिशिएंटली तो मैं अदर स्टेट्स में नहीं देख रही हूँ. तो रेप क्राइम क्राइसिस सेल ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है दिल्ली के? सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ दिल्ली के जितने कोर्ट्स हैं, Okay. जितने जुरिसडिक्शंस हैं, जितनी पोक्सो की कोर्ट्स हैं, जितने मेजर विक्टिम्स की रेप की कोर्ट्स हैं, उन सब में हमारे रेगुलर काउंसिल्स हैं. ओके ओके हमारी सारी पूरी टीम है. ओके. और वी आर नॉट इवन लिविंग एनी विक्टिम्स विदाउट अटेंडिंग. अच्छा, यू पर्सनली अटेंड टू द विक्टिम? हाँ, ऑलवेज डायरेक्टली. इवन इफ मान लो उनके प्राइवेट काउंसिल्स हैं, हाँ, तब इवन इफ है, तब भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपके प्राइवेट काउंसिल्स हैं, हम वी आर नॉट इंटरवीनिंग, बट वी आर प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट रूम. बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि सारे जो काम है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे इनका चल रहा है सब कुछ. और अब चाहे वो बयान बदलें, बस हम इतना करते हैं कि मान लो उसके साथ प्राइवेट काउंसिल है, इंटरवीन नहीं करते, ठीक है, आपकी जो मर्जी है, क्योंकि आपके पास एक काउंसिल है, एक लीगल राइट्स हैं, तो कोई बात नहीं, इंटरवीन नहीं करते. बट हम उनको ये श्योर हमेशा दिलाते हैं कि हाँ, वी आर हियर फॉर यू. तो किसी भी स्टेज पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नीड है, मान लो आपके पास फाइनेंशियली अब चीजें वैसी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, या आपको डाउट होता है कि नहीं हियर आई नीड योर असिस्टेंस, तो देयर रेप आरसीसी काउंसिल विल बी देयर. तो देन आरसीसी काउंसिल विल हेल्प हर. So I think it's a really good initiative by the Delhi Commission of Women, wherein they have brought this particular concept of developing RCC in every district court, and I think it should be made mandatory कि at least सारे pan India में इस तरीके का RCC हो. I think it is like you told कि RCC council का role start to end आता है, and victim का back end से भी उनको assistance provide करना. I think this is a very good, and I think more so इसमें एक awareness और जनरेट करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर अवेयर कि आरसीसी जैसे कोई चीज भी है. एग्जैक्टली, राइट. सो मोर ऑफ दिस अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. एक्चुअली क्या है, उस वक्त विक्टिम्स को एक जो मैं समझती हूँ, जितने सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस हैं, उन विक्टिम्स को एक वो चाहिए जो उसकी बात को सुन पाए, उनकी क्राई, जो उसके अंदर की चीजें हैं, जो उस कंप्लेंट्स में नहीं आए हैं, वो जो अंदर का ट्रॉमा है, उससे वो बाहर आए. एग्जैक्टली. उससे वो उसको बाहर आने में, बिकॉज़ क्राइम तो हो गया, हाँ, क्राइम तो हो गया, क्राइम आल्सो शी हैज टू लिव. लाइक यू सेड दैट गर्ल नाउ शी इज डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स. अब नाउ जब उसके मैसेज आते हैं
तो मुझे बड़ी खुशी होती है। Yes. वो अभी भी मुझे कुछ अगर उसको प्रॉब्लम कोड में होती है तो वो ना उसे डायरेक्टली कॉल मी Oh, that's so great. कि मैम मुझे दिक्कत हो रही है या फिर ये मेरी प्रॉब्लम है मैम। So they can contact their RCC counsel anytime. हाँ, So this is one of the thing to for the audience to know that all RCC yes, lawyers are very much trained in this regard. 24/7 connected. This is a very good thing. 24/7. That's Even if like we are busy in the camera trial, I like usually generally we used to text. yeah, कैमरा ट्रायल इन द सेंस बिकॉज रेप विक्टिम्स का जो ट्रायल होता है कैमरा ट्रायल ही होता है। अभी जो रिसेंट जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जज में बताई थी तो उन्होंने बोला कि नॉट ओनली सेक्सुअल लाइक एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एनी काइंड वो भी कैमरा ट्रायल भी रहेंगे, नॉट ओनली रेप। सो दैट इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। सो इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव गॉट। Is there anything that you would want to tell the audience to generate a kind of awareness? Yes, of course. I'll suggest everyone to be aware about what's going on around. Like क्या चल रहा है आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स हैं, be always vocal. आप शेयर करो, जितना आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड से शेयर करो। कोई भी चीज़ों को आप ये ना कि अपनी तक रखो, अपनी खुशियों को, तो अपने गम को भी शेयर करो। Exactly. मैं ये नहीं कहूँगी हर किसी के साथ में, बट अपने जो क्लोज फ्रेंड है फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड बनाना है आपको, अपने अच्छे फ्रेंड से वो चीज़ें शेयर करो सो डैट आपको पता हो कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। जो हम अंदर रख लेते हैं कि नहीं यार ये गलत है ये सही है, जो हमने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आ रहा है कि नहीं जी ये नहीं बताना क्योंकि ये फ्रेंड है, नहीं ये नहीं बताना ये चीज़ है, नहीं आप वोकल बनो, आप अवेयर रहो, अपडेटेड रहो, अवेयर रहो और अलर्ट रहो, ऑलवेज बी अलर्ट। Yeah. Especially when you're driving in the night in Delhi, specifically in Delhi. So be safe. Other state तो नाम भरोसे है जो मैं देखती हूँ वो तो नाम भरोसे है, तो दिल्ली में आपको फिर भी बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। Yes, it is. Okay, so that's it for today. It was a wonderful chat today with Miss Mani Chaudhary, and I hope that you all are liking this podcast. So with more such kind of podcasts, we're gonna come in future. And if any suggestions from your side, please do let us know in the comment section.